हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज के इस वीडियो हम लोग एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर 1 है, उसमें से जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और ये लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इसके रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई टेलीग्राम ग्रुप because this group is exclusive for UPSC aspirants and around 140 aspirants were added in this group. Okay, so you can join this by typing this link. Okay, so I'm Saurabh Pratap and let's start today's video. As we know that I always discuss the PYQs when I start any topic. So let's discuss the PYQs. The questions which were asked from this topic were very generic, basic in nature. Okay, so what is greenhouse effect? Okay, just explain in this what is greenhouse effect. Write in detail about various greenhouse gases, okay, and their impact on crop production. This was asked in 2021 civil services examination, and in 2018 civil service examination, they describe global warming and its impact on crop productivity. More or less the same question. Explain greenhouse effect and sources of their emission. This was asked in IFS exam 2018 10 marker. Okay, and describe various. I think this will be 8 marker. Okay, describe greenhouse effect and global warming. This was direct question which was asked in 2017 10 marker question. What is greenhouse effect? Discuss the impact of global warming in agriculture. More or less directly they are asking the same topic, same question repeatedly, okay, in different form. They just change little bit terminologies, okay. So they are a very generic and direct questions, but you have to make it very special answer by adding some relevant data, overall examples. So you have to increase the quality of answers, then you will get a good quality marks. Okay, what are the major causes of global warming? Okay, directly you have to mention short note on greenhouse effect and global warming. That question: greenhouse gases and their effect on crop production and possible remedial measures. This was asked in IFS exam 2016 200 words. Okay, so you can analyze these questions based on your data knowledge and just solve it. So let's discuss the greenhouse effect. What is greenhouse effect? As we know, this is a very common thing, common trend now. Greenhouse, global warming, very common terms. So let's stand. If you are any generic student, you don't know anything, आपको अगर नहीं पता है कुछ भी, तो इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी बेसिक से जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये इसके बारे में जानकारी ली होगी, पढ़ा होगा पहले कभी, ठीक है। फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज अ structure, okay, and this was covered with transparent material. You know, this color, this is covered with transparent material, and this structure is used in cold areas where low availability of sunlight. ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे मतलब ये वहां पे बनाए जाते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी सन के सनलाइट की अवेलेबिलिटी काफी कम होती है और क्रॉप ग्रो करनी होती है, ठीक है। उन्हीं एरियाज में इन स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टील का या वुड का कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें से इसको क्या किया गया है, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके थ्रू सनलाइट जो है ना ये पास हो रही है। ब्लू कलर में देखिए, ये पास हो रही है ना। अब यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे अंदर कुछ गैसेस होगी, ठीक है, और ये ट्रैप हो जाती हैं। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो नॉर्मल एयर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इनको क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया। और ये जो
आती है लाइट, ये शॉर्ट वेवलेंथ में आई है, ठीक है, किस में आई है, शॉर्ट वेव में, ठीक है। और यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई, ये आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। कैसे? अब यहाँ से जो ये लाइट जा रही है, यहाँ पे आप कलर देखिए, आ रही थी ब्लू कलर में, जा रही है रेड कलर में। तो इसका एग्जांपल बस ये है कि जो लाइट आई है ग्रीन कलर ब्लू कलर में, ये शॉर्ट वेवलेंथ में आया है, बट रिफ्लेक्ट थोड़ी सी हुई है, बहुत ही कम, ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हुई है। कौन सी लॉन्ग वेवलेंथ? जो ग्लास के थ्रू रिफ्लेक्ट हुई है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएशन वाज ट्रैप्ड इन दिस स्ट्रक्चर। ओके, अब जब ये स्ट्रक्चर में ट्रैप हो गई हैं, तब ये जो क्रॉप्स हैं ग्रो की जा रही हैं, उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा ये सनलाइट। और जो टेम्परेचर है ये रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर जो है रेगुलेट किया जा रहा है। अब इसके अंदर का जो आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर हो गया, ये इसके लिए सुटेबल हो गया क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जो जितने भी प्लांट्स हैं उसके लिए सुटेबल हो गया। अब जो एटमॉस्फेयर बना है इसके अंदर, वो क्या हो गया, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। क्या बन गया, ये जो प्रोसेस है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए इसको दूसरे वे में समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अनदर वे। This is the greenhouse. Just another example. Greenhouse. This is the sun. Wait, let me change the color of pen. Sun. Okay. Short wavelength is coming. So you can see these rays. Short wave radiation coming from the sun and hitting the earth. And this is the atmosphere. Wait, let me change the color. This is the uh, this is the atmosphere, this is the earth, and this is the atmosphere. Now these waves hitted the earth, but they are not reflected out, ठीक है, ये जो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही हैं, और जो भी थोड़ी बहुत रेडिएशन जाएगी, लिटिल बिट रेडिएशन आएगी, लेट सपोज आई 100% है, बट रिफ्लेक्ट कितना हो रही है, 20 to 30%, अराउंड 70% जो रेडिएशन है इसके अंदर ट्रैप हो गई। अब इससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है इस एरिया का, ठीक है, यहाँ जो पूरा एरिया है ये एटमॉस्फेयर है, वो क्या कर रहा है, ट्रैप कर ले रहा है पूरा। और एटमॉस्फेयर कैसे ट्रैप कर रहा है, जितने भी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो ट्रैप कर रही हैं, ठीक है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन में ये ट्रांसमिट हो रही है। ओके, अब आपको ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ radiation and short wave radiation. Okay, so make it clear, and if you are missing any point, just comment, or you can rewind the video. So I have taught you the basic concept of this. This is the another example of greenhouse gas. So by this increases the trapped energy increases the temperature of this earth surface, and by gradual increase in temperature is called greenhouse or global warming. Okay, and the energy trapped by the gases are known as the greenhouse gases. All those gases which have the potential to trap the energy, solar radiation, are known as global greenhouse gases. Okay, greenhouse gases. So let's understand what is greenhouse effect by in a theoretical way. Let me change the pen color. Greenhouse effect is the process by which radiation from the sun are absorbed by the greenhouse gases and not reflected into the space. Okay, absorbed by greenhouse gases and not reflected into the space. This insulates earth surface, okay, and prevent it from the freezing. Means जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोसेस है, अब जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोसेस है वो नेचुरल है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो हमारे हैबिटेबल बना रही है, अर्थ को सुटेबल बना रही है ह्यूमन के रहने के लिए, ठीक है। इट मेक्स द नेचुरल ग्लोबल ग्रीन हाउस नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस, सॉरी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रोसेस के थ्रू जो अर्थ सरफेस है ये ह्यूमन हैबिटेबल बन रही है, इंसानों के और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने लायक बन रही है। अगर ये कंटिन्यूअस हाई लेवल पे जाएगी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, हम अभी आगे टॉपिक है जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल जो होगा उससे क्या होगा, वो फेवरेबल है
ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम हो रहा है और ह्यूमन बीइंग के लिए, अदर एनिमल्स के लिए वो सुटेबल हो रहा है लिविंग सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट स्लो हो जाए तो क्या होगा, अगर ये अर्थ है और ये सन है, ये आर रेडिएशन अगर ये आना बंद हो जाए तो क्या होगा, अर्थ विल बी बिकम द फ्रीजिंग बॉम्ब। ओके, this will freeze the, okay, but due to natural greenhouse effect process, this earth is now habitable for humans and other living organisms. So this is the basic concept of greenhouse effect. These are the, what are the GHGs? GHG refers to greenhouse gases. ठीक है, gases. So what are the major gases which are known as greenhouse gases? First one is the CO2. This is CO2. The source and cause. You need to know about the sources and causes of sources and causes of greenhouse gases. एक्चुअली काफी लॉन्ग टाइम से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया ना, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इस वजह से थोड़ा सा फंबल हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप इन चीजों को नोटिस ना करें, जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। सो CFC, नेक्स्ट गैस इज अ CFC. दिस इज सोर्स इज अ रेफ्रिजरेटर, AC air conditions or refrigerators, insulation foams, aeropropellants, industrial and commercial use. Okay, from this it is released into the atmosphere. Then methane, you know that about methane. Growing paddy means rice field, excreta of cattle and other livestock, termites, they also release the methane. About termites, this was asked in UPSC exam. Okay, UPSC exam, in prelims exam this was asked, I think 2020, in 2020 या फिर 2019 में पूछा गया था. Burning of fossil fuels, woods, landfills and wetlands. Wetlands also major source of greenhouse gas or methane. Okay, fertilizer factories, nitrogen oxide, burning of fossil fuels, fertilizers, nitrogenous fertilizer especially, burning of wood and crop residue. Okay, carbon monoxide. The major source of carbon monoxide is iron ore smelting and fossil fuels and burning of e-waste. You know about e-waste? If you know, just comment it. अगर आप e-waste के बारे में जानते हैं कमेंट करिए। आई होप आपको पता ही होगा, बट फिर भी आप कमेंट करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज एक लाइक करिए, नीचे थम्स अप डालिए कमेंट में। ठीक है, तो इसे मैं क्या होता है ना कि पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बट यहाँ पे क्या है ना, एग्रीकल्चर ऑप्शन में मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, बट आपको जो प्रेजेंटेशन पार्ट है ना, आपको किसमें प्रेजेंटेशन पार्ट है, प्रेजेंटेशन पार्ट है, इस पे आपको फोकस करना है। आपको स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। ठीक है, आपके नोट्स, आपको अपने नोट्स खुद मेंटेन करने हैं। ठीक है, आपको अपने हिसाब से बनाने हैं नोट्स सारे के सारे। बस मेन पार्ट है, मेन फोकस आपको अपना स्ट्रक्चर में आंसर राइटिंग करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पे मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करूंगा, तो आप उसके लिए भी वरी मत होइए। ठीक है, और सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग. It is the process in which temperature of earth increases gradually because of greenhouse effect. अब नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट था, यहाँ पे क्या है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होगा? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। बट यहाँ पे क्या है ना कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से क्या हो रही हैं, वो हाई जा रही हैं, उनका कंसंट्रेशन हाई हो रहा है। अब कंसंट्रेशन उनका हाई हो रहा है तो क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी ट्रैप होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब और एनर्जी ट्रैप होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्लाइमेट चेंज होगा। इसीलिए मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज बोथ आर द इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ओके, सारे के सारे एग्जांपल्स वहीं सारे फिट हो जाते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट दिस, यू कैन यूज द एग्जांपल्स इंटररिलेटेबली।
Okay, so it is the gradual process. You can see gradual process of increasing the temperature. What temperature? Temperature, ठीक है, of the atmosphere. ठीक है, अब इसको आप ऐसे ही बता सकते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ओके, ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ठीक है, अभी किस किस वजह से होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, जैसे सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर फॉरेन पॉल्यूटेंट्स, जैसे वाटर वेपर हो गया, बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट का सोर्स है और ये हीट को ट्रैप भी बहुत ज्यादा करता है. ठीक है, सो आई होप you got the idea of global warming. If you have any doubt, just comment it or you can rewind the video. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने समझा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हाई हो जाता है. रेडिएशन जो होता है इकट्ठा होता जाता है, किस वजह से? जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. जैसे CO2 है, आज के टाइम पे जो डिफॉरेस्टेशन और कार्बन को मेंटेन करने, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा फोकस किया जा रहा है. ऑल ग्लोबली वी ऑल आर फोकसिंग ऑन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. I hope that you have heard about these topics, these concepts about carbon sequestration, carbon trading. So these are the major concepts, big concepts. So this is all about global warming. Okay, now you can see in this image the level of heat temperature. The blue color is showing the ocean temperature and the red color is showing the land temperature. Okay, and darker one is showing the highest impact of the climate change on earth and these areas, that such as that this is the Saudi Arabia part, this is the map of India, and northern part is most heated. What? Northern part is most heated. Okay, so what are the major causes of global warming? I hope आपको global warming, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस करते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर यही ऑफलाइन क्लास होती तो इस क्लास को लेने में 2 से 3 घंटे लगते हैं. ओके, क्योंकि वहां पे एक एक कॉन्सेप्ट समझाना होता है. बट यहाँ पे यूट्यूब में सबसे बड़ा इशू क्या है ना, कि आप लोग व्यूज इस हिसाब से आते हैं ना, यार वीडियो जितनी छोटी हो, कंटेंट मैक्सिमम हो, वीडियो छोटी मिल जाए. ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता. आपको टाइम देना पड़ेगा, ऑप्शनल है ये. ठीक है, और ऑप्शनल आपका मेरिट में नाम आ भी सकता है हॉली पीडीएफ में, और आपका उस पीडीएफ से नेम आउट भी हो सकता है. तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा. आप जीएस में थोड़ा सा कम एफर्ट दीजिए चलेगा, लेकिन ऑप्शनल में एफर्ट देना ही पड़ेगा आपको. तो बिल्कुल मत ये करिए, टाइम लगता है थोड़ा सा, वीडियो थोड़ी थोड़ी लंबी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे क्या, मैं तो बिल्कुल शॉर्ट में बता के चल दूंगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, क्या फायदा. वहीं आप अगर 40,000 50,000 रुपीज एक ही ऑप्शन का स्पेंड करेंगे कोचिंग में जाके डेली में, जैसे इवोल्यूशन हो गई, कृष्णा बोकरेसर के हो गए 25 20 60 30,000 अराउंड फी है, तो ऑफलाइन में जाके आपको पे करते हैं, वहां पे आप 2 से 3 घंटे बैठे रहेंगे. बट यहाँ पे अगर 15 मिनट की वीडियो लग रही, अरे बहुत बड़ी हो गई, ऐसा नहीं. तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं. मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. एज यू नो, fossil fuels are the major contributor of global warming. They release the CO2, CFC, N2O, and many other gases, you know. Okay, which release significant amount of CO2 in the atmosphere, and it causes in current days CO2 is the one of the most contributor of the greenhouse global warming. Okay, this is a major contributor of global warming. Deforestation. By deforestation, the whole area, the whole forest area is cleared and felled. पूरा जंगल साफ कर दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब हो रहा है. फॉरेस्ट एक्टिंग एज अ मेजर कार्बन सिंक. यू नो व्हाट इज कार्बन सिंक? अगर कार्बन सिंक पता है तो आप कमेंट करिए अभी जाके, अगर नहीं पता है तो गूगल करिए फिर कमेंट करिए. ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. ठीक है,
तो जो फॉरेस्ट है कार्बन सिंक की तरफ वर्क करते हैं। अब क्या होगा, फॉरेस्ट को ही कट कर दिया जाए डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, क्या होगा, अब कार्बन सिंक पूरा डिस्ट्रॉय होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा और डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो डिफॉरेस्टेशन से CO2 है वो क्या होगा, हाई हो जाएगी, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होगा CO2 का वो हाई हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आपको पता है जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई और अदर इंडस्ट्रीज हो गई जो पॉल्यूशन कॉज कर रही है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या होगा, वो बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज करते हैं, टॉक्सिक गैसेस होंगी, CO2 मेजर है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स भी यूज होंगे उसको फैक्ट्री रन करने में, ठीक है, तो वो हो गया, ठीक, N2O, O3, CFC, बहुत सारे अलग अलग टाइप की गैसेस होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड, तो अलग अलग रहती हैं, क्या करेंगी, रिलीज होंगी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू। मीथेन, N2O, ये सब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाके कंसंट्रेशन इनका बढ़ जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन का एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस और तेज हो जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। अब आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर कैसे हो गया, एग्रीकल्चर इज आल्सो has the significant effect on global warming because many agricultural practices such as paddy field releases ammonia, sorry ammonia नहीं, ये मीथेन, अब लाइव स्टॉक ये भी मीथेन को रिलीज कर रहे हैं, राइस पैडी जैसे ये लिखा है यहाँ पे, राइस पैडी मीथेन को, या राइस या पैडी फील्ड, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इससे नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज हो रही है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कैसे होगा, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूरिया हो गया, ठीक है, DAP हो गया, इससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होंगे वो भी क्या करते हैं, एज अ ग्रीन हाउस एक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग प्रमोट करेंगे, ठीक है। लैंड यूज चेंजेस, लैंड यूज चेंजेस में बेसिकली क्या होता है कि अभी आप देखिए फास्ट रेट से अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन में कॉन्सेप्ट होने में पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है, अभी पीछे पॉइंट पे, अब अर्बनाइजेशन होगा और एग्रीकल्चर लैंड के लिए फॉरेस्ट को भी क्लियर किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी, ठीक है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है बहुत बड़ा, जैसे ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का इशू सबसे बड़ा है, जिससे क्या होगा, CH4 एंड अदर टॉक्सिक गैसेस, ठीक है, ये सारी रिलीज होती हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये सारी सारी गैसेस रिलीज होती हैं। कहीं भी डंप फिल होते हैं ना, वहां पे लैंड फिल्स जो एरिया है वहां पे आप देखिए बहुत फाउल सी स्मेल आती है, वहां पे 2 मिनट खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेजर सोर्सेज हैं, फ्लोरोनेटेड गैसेस, फ्लोरोनेटेड जैसे CFC, PFC, परफ्लोरोकार्बन, ये सारी की सारी गैसेज ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को इनहेंस करती हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है इनका। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एग्रीकल्चर, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, हम लोगों ने देखा तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके कॉजेज क्या क्या हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, हम लोगों ने 4 से 5 पॉइंट कवर किए, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट के, क्योंकि आप जब कोई भी एक क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे पिछले क्वेश्चन हमने एनालाइज करे, उनमें से क्या था कि हर उसमें उन्होंने कॉजेज पूछे हैं लगभग, ये तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या है वो पूछा है, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। तो चेंजिंग ग्रोइंग सीजन, अब आप देख रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रॉपिंग का सोविंग सीजन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्रॉप ग्रोविंग लेंथ है वो डिस्टर्ब हो रही है, किस वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि ग्रोइंग सीजन हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, और यील्ड क्या है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर जो ऑनियन था, द प्राइस ऑफ नॉट ऑनियन, प्राइस ऑफ लेमन वर स्काई रॉकेटिंग, prices of lemon were too high that normal even a normal people person can't afford,
This year, the price of onion too high. Okay, so government imposes the 40% export duty. Okay, this is the reason. This is the major cause of global warming. ड्रॉट एंड वाटर स्कैरिसिटी. आपको क्या करना है ना कि जो कोई भी करंट सिनेरियो चल रहा है, सिविल सर्विसेज की ड्यूटी है कि आपको कोई भी सिनेरियो चल रहा है, आप उसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक करिए और उसको नोट डाउन करिए. ठीक है, और कोई कुछ स्पेशल नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करना है. ड्रॉट एंड स्कैरिसिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉट एंड स्कैरिसिटी. Rising temperatures and increase irregular monsoon have increased the frequency and intensity of droughts. Means जो मानसून का डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब मानसून डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि टोटल जो इंडिया की एग्रेरियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में, वो अफेक्ट होगी, इकोनॉमी अफेक्ट होगी. ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर पे बात कर रही है, तो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट पे हम बात करेंगे. अदरवाइज हम लोग इसका क्लाइमेट चेंज के काफी सारे डायमेंशन है, उन पर बात कर सकते हैं, बट हमारा मेन फोकस यहाँ पे एग्रीकल्चर पे बात करने का. तो टेम्परेचर रेज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉट बढ़ रही है. ठीक है, ड्रॉट बढ़ रही है और वाटर स्कैर्सिटी बढ़ रही है. अब वाटर स्कैर्सिटी होगी तो क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी होगा वो रिड्यूस होगी, बिकॉज ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ क्रॉप विल बी लो. ओके, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ क्रॉप yield will be low. There was a data from Down to Earth that in 2015, 256 out of 641 डिस्ट्रिक्ट इंडिया, 641 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के थे, उनमें से 256 256 डिस्ट्रिक्ट हैं वो काफी ज्यादा ड्रॉट से अफेक्ट हुए, वाटर स्ट्रेस रहा और क्रॉप प्रोडक्शन हिट हुआ. ठीक है, इस बार राइस प्रोडक्शन भी काफी हिट हुआ है. ठीक है, अब राइस प्रोडक्शन का भी स्टेटस देखिए, डेटा देखिए, वो भी काफी ज्यादा हिट हुआ है. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नॉन सरबती कौन सा है राइस, वो एक्सपोर्ट के लिए बैन कर दिया है. ठीक है, ब्रोकन राइस पे भी बैन लगा दिया है. उधर वॉर चल रहा है, अवेलेबिलिटी जो राइस की है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुई है. तो ये सारे सारे कॉन्सेप्ट आपको न्यूज़पेपर में आपको मिलते रहेंगे. कैसे क्या है, आपको यहाँ पे लिंक करना है और कुछ नहीं है. ठीक है, फिर ये हीट स्ट्रेस ऑन क्रॉप. एक्सट्रीम हीट वेव्स एंड प्रोलॉन्ग्ड हाई टेम्परेचर स्ट्रेसेस affecting crop growth, development and overall yield. This is the result of crop growing season. ग्लोबल वार्मिंग का ये सब क्या है, सीध वही है. अब महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र और सेंट्रल इंडिया, जो महाराष्ट्र है जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे इंटेंस हीट वेव का इफेक्ट रहा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था अराउंड 48.6 डिग्री पहुंच गया. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रेप्स, मैंगोज एंड वेजिटेबल्स स्पेशली ऑनियन काफी ज्यादा हिट हुए. ठीक है, ये सारी की सारी क्रॉप्स हैं, ये एग्जांपल डायरेक्ट लाइव एग्जांपल्स हैं. यही है जो कॉमन ऑब्जर्व करना है, यही आपको लिखने होते हैं. ठीक है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के. नेक्स्ट है डिक्रीज क्रॉप यील्ड. अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हर जगह क्रॉप इफेक्ट हो रही है, क्रॉप यील्ड. अब कुछ भी क्रॉप की ग्रोथ होगी ना, डेवलपमेंट में इफेक्ट होगा, ग्रोइंग सीजन में इफेक्ट होगा. अल्टीमेटली जो यील्ड है वो डाउन जाएगी. अब जब यील्ड डाउन जाएगी तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी कंसर्न आएगा. फूड सिक्योरिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू द पॉपुलेशन. ठीक है, आपके पास जो फूड आ रहा है, अवेलेबल है, आप परचेज कर पा रहे हैं, ये फूड सिक्योरिटी. अब यील्ड नहीं होगी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी काफी अफेक्ट होगी. ठीक है, अब पाकिस्तान में देखिए क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी नहीं है. जो व्हीट फ्लोर है वो 200 केजी, 300 केजी, और ऐसे ही अदर कमोडिटीज हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत ज्यादा हाई रेट पे चल रहे हैं. ये क्या है ना कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है. रिजल्ट क्या हुआ कि लास्ट ईयर पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ज्यादा कोलैप्स हो गई. कैसे, अब उसका रीजन तो पता ही होगा आपको. उसमें से डायरेक्ट इम्पैक्ट था, जो डायरेक्ट रोल था ग्लोबल वार्मिंग का था, क्रॉप फेलियर का था, जिस वजह से जो फूड का इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई हो जा रहा है. ठीक है, वहां की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है. श्रीलंका में देखिए लास्ट ईयर क्या था, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई लॉकडाउन के टाइम पे. ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं. चेंजिंग पेस्ट डायनामिक्स मींस अब एक पेस्ट क्या हो रहा है, पेस्ट क्या होते हैं, डिजीज और पेस्ट. इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ना, वो क्रॉप को डिस्टर्ब करते हैं. क्रॉप में अगर एक बार लग जाए तो क्रॉप पूरी बर्बाद.
इट डिस्ट्रॉय द होल क्रॉप, या फिर यील्ड का अल्टीमेटली क्वालिटी रिड्यूस कर देते हैं। अब स्प्रेड ऑफ पेस्ट लाइक फॉल आर्मी वर्म इन इंडिया हैज रेज्ड अ कंसर्न अबाउट इम्पैक्ट ऑन मेज प्रोडक्शन। फॉल आर्मी वर्म काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है मेज प्रोडक्शन में। और देखिए ड्यूरिंग लॉकडाउन द लोकस्ट अटैक लोकस्ट अटैक दे केम फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, अफ्रीका से आए थे और काफी ज्यादा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया was most hit due to locust attack. Okay, so these are the live examples. Impact on livestock due to heat stress, reduce milk yield, and also increases the mortality rate of animals or livestock. एनडीआरआई की एक रिपोर्ट आई जिसमें से क्या कहा एनडीआरआई में, इंडियाज लाइवस्टॉक सेक्टर इज vulnerable to heat stress and extreme heat events in the past have resulted in substantial economic loss for dairy farmers. मीन्स अभी के टाइम पहले क्या हो रहा था ना, कामधेनु योजना है, यू नो दैट अबाउट कामधेनु योजना। आप जस्ट कमेंट में जाइए अभी कामधेनु योजना के बारे में ये बताइए कब स्टार्ट हुई, किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी, ठीक है, और इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या थे वो एक लिख दीजिए कामधेनु स्कीम के, ठीक है। तो उसमें से इन्होंने क्या क्या बताया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई करनाल में। अब इन्होंने क्या बताया कि जो डेयरी फार्मर्स हैं, ठीक है, उन पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई हो गई, जो मिल्क यील्ड है वो कम हो गई। ये सब कारण रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। अभी सितंबर में, अब सितंबर आ गया, 3 सितंबर है आज, किस वजह से क्या हो रहा है, ये मानसून काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, रेन नहीं हो रही है, टेम्परेचर हाई जा रहा है। ये सब किसका रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग का। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। मैंने आज इस लेक्चर में बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हमारे नॉर्थ इंडिया से हैं, ठीक है, वो हिंदी डिमांड करते हैं, इस वजह से मैं ज्यादा इंग्लिश में नहीं किया, बट जो कुछ चीजें होती हैं कॉन्सेप्ट वो हिंदी में मैंने कोशिश करी है समझाने की, ठीक है। तो प्लीज आप कोशिश करिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है कि चाहिए, अगर आपको इंग्लिश में स्पेशली चाहिए तो वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, और हाँ, इसके पहले और जो वीडियोस हम लोगों ने अपलोड करे हैं वो जाके प्लीज आप लिख वॉच करिए, उनसे नोट्स बनाइए, उनमें भी हमने इसी तरह से डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, और जल्दी ही हम लोग इस मंथ में कोशिश करेंगे जो पेपर 1 है उसका 70 to 80% पोर्शन है वो कवर हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमको पेपर 2 स्टार्ट करनी है। जैसे ही हमारा पेपर 1 फिनिश हो जाएगा हम लोग पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।